Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب میرے محترم دوست و بزرگ، میں آپ باتیں کرنے جا رہا ہوں یوم آزادی پاکستان اور یوم آزادی ہندوستان۔ اور میرے دوستوں یہ بھی بات سنیں کہ دو ہی ملک بنا ہیں اسلام کے نام سے، ایک تھا ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان۔ یہ اسلام کے نام سے صرف یہی دو ملک بنا ہے، دو ہی ریاست بنا ہے۔ پھر 1906 میں نواب سلیم اللہ خان کشمیری رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک تحریک کا بنیاد رکھی ہے، جس میں علماء دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کچھ علماؤں کی یہ سوچ تھے، اس میں سے حضرت حسین احمد مدانی رحمت اللہ علیہ جیسے شیخ الحدیث، شیخ المشائخ اور دیگر بڑے بڑے علماء یہ کانگریس کے ساتھ میں تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ بننے سے پہلے کانگریس کا وجود آ چکا تھا اور کانگریس کے نام سے ہی انڈیا میں یہ تحریک چل رہے تھے انگریز کے خلاف۔ پھر اس کی بعد جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، شاہ اسماعیل، پھر شاہ امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت امام گنگہی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی، اس کی بعد حضرت شاہ سید ضامن شاہ رحمت اللہ علیہ، ان ساروں کی وجود، اس کی بعد شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی دور آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک تحریک وجود میں آتا ہے، وہ پاکستان کی اصل تحریک تھا، جو پاکستان کی تحریک تھا۔ میرے دوستو، رات کو 12 بجے اعلان ہوتی ہیں 1940 پہ۔ 1940 میں دوسرے جنگ عظیم شروع ہو گئے تھے۔ برطانیہ اس وقت میں بڑے شکست کھا رہے تھے، انتہائی پریشان تھا، اپنے ملک سے لڑے یا دوسرے ملک کا قبضہ کو چھوڑے۔ اب یقیناً ان کو بر صغیر کی قبضہ کو چھوڑنا بھی ان کے اوپر ضروری تھا۔ پھر ادھر سے علماء کرام کی پٹائی، پھر مفکر اسلام، محدث اسلام، شیخ المشائخ، علماء کرام کی جماعتیں اور اس دور کے جو طلباء تھیں دارالعلوم دیوبند کی، یہ ساری کی ساری قربانی دیتے ہوئے انگریزوں کو بڑی قربانی دی ہے، اور 80,000 علماء ہند کی علماء کو شہید کرنے کے بعد اس کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ یہ دونوں مل کر انگریزوں کو بھگایا۔ پھر جب یہ تحریک آگے بڑھنے لگے، کچھ علماؤں نے اختلافات کی ہے، ان میں سے حضرت حسین احمد مدانی رحمت اللہ یہ چاہتے تھے، یہ پاکستان کی خلاف نہیں تھا میرے بھائیوں،
आजकल जदीद मीडिया वाले या दीगर लोग ये बात ही कहते हैं कि उलमा पाकिस्तान के खिलाफ थे, उलमा पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अहमद मदानी जैसे उलमा और दीगर उलमा किराम की इनका जो सोच था, इनका जो तफक्कुरात था, इनका जो तदब्बुरात था, इनका जो फिक्र थे, ये मुसलमानों की एक फिक्र थे कि हम लोगों ने इतनी कुर्बानी देकर अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाकर, बर्रे सगीर से भगाकर, फिर अंग्रेजों को यहां से भगाने के बाद फिर हम मुसलमान इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करेंगे और किसी का हुक्मरानी चलने नहीं देंगे, क्योंकि शुरू से मुसलमानों की हुक्मरानी चलते रहे और मुगलिया सुल्तानत की हुकूमत चलते रहे और बादशाह जहांगीर की और जैसे बादशाह जहांगीर की और बादशाह आलमगीर की जैसे हुकूमतें चलते रहे, शाहजहां की हुकूमतें चले, बाबर की हुकूमतें चले, शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमतें चले, उसके बाद सिराजुद्दौला की हुकूमतें चलते रहे, टीपू सुल्तान की हुकूमतें चलते रहे और उसके बाद फिर मुसलमानों की ये हुक्मरानियों को क्या हम दोबारा हिंदुओं की हाथ में दे देंगे। लेकिन उस वक्त में भी मुसलमान अक्सरियत में नहीं थे, मुसलमानों की कुव्वत थे, मुसलमानों की ताकत थी और इस किस्म की जबरदस्ती मुसलमान ताकत से जो है कामयाब हुए। बल्कि किस चीज की ताकत थी? एक तो ईमानी ताकत थी, एक ईमानी कुव्वत थी और ईमानी कुव्वत की वजह से खौफ खुदा की डर इनकी दिलों में होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इलाही कलिमतुल्लाह की लिए ये जंग लड़ने की वजह से अल्लाह ने उलमाओं को कामयाबी अता फरमाया। और यही कहते हैं लिहाजा हम पूरे के पूरे बर्र सगीर के अंदर हुक्मरानी करेंगे, सारे मुसलमान हम एक साथ होंगे तो हमारे हुक्मरान भी मुसलमान होगा, हमारे हुक्मरान भी मुसलमान होगा, हमारे यहाँ की बादशाह भी मुसलमान होगा। लिहाजा इसको जो है ना तकसीम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उलमा किराम बोलते थे, वरना हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि मुसलमान अगर दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो हम उनकी मदद के लिए नहीं जा सकते हैं। लिहाजा हम एक ही साथ में एक ही टुकड़ों में मुत्तफिका तौर पर इत्तेहाद और यकीन के ऊपर और जो है जो इनकी ये मकसद थे कि हम जो है इत्तेहाद रहें और फिर यकीन भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर करें, फिर मुत्तफिक हम रहें और उसके बाद जो है ना यकीनन हमारे कामयाबी हासिल होगी। ये हज़रत हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह की सोच थे। लेकिन उस दौर में हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग, जिन लोगों ने 2000 से ऊपर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं और कायदे आज़म ने भी कहते थे इनके बारे में, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि ऐसे उलमा, हाँ उलमा हिंद के अंदर अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा की है, अल्लाह अकबर, के 2000 किताब जिन लोगों ने अपने हाथों से लिखे हैं, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हाँ हस्ती, फिर उसके बाद हजरत जफर अहमद उस्मानी, हजरत जो है ना शब्बीर अहमद उस्मानी, हजरत शफी उस्मानी, मुफ्ती शफी उस्मानी जैसे बड़े बड़े हस्ती, फिर जो है ना आल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है ना हिमायत पर आकर खड़े हो गए। ये लोग इसकी मुखालिफ नहीं थे, लेकिन कुछ लोग आजकल ये कहते हैं कि उलमा पाकिस्तान की हिमायत पे नहीं थे, पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खान कश्मीरी ने जब 1906 में इस तहरीक का आजाद बुनियाद रखी, उनकी हिमायती में हजरत जफर अहमद उस्मानी, हजरत शब्बीर अहमद उस्मानी, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से हजरत अहमद नूरानी, वालिद अब्दुल अलीम कादरी, ये पाकिस्तान की हिमायत में थे। आज जबकि कांग्रेस में मौलाना हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह थे। अब ये आवाज आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस दौर की कुछ उलमाओं ने यह सोचा कि पाकिस्तान के हमारे मुसलमानों के लिए कि हिंदुओं की रस्म रिवाज से हटकर जब मुसलमानों को रहन सहन अलग है, मुसलमानों की मस्जिदें अलग है, मुसलमानों की इबादत की तरीकाकार अलग है, तमाम तर चीजों को देखते हुए उलमा, इन बुजुर्गाने दीन ने नवाब
सलीमुल्लाह खान कश्मीरी ने ये बुनियाद रखी 1906। फिर उसकी बाद उनकी साथ देने वाले AKM फजलुल हक 1916 को वो उसकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी बनती हैं। सेक्रेटरी बनने के बाद वो फिर सदर बनता है 2019। फिर 1923 को वो बंगाल के वजीर आजम बनता है AKM फजलुल हक। और फिर AKM फजलुल हक, मोहम्मद अली जौहर, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शिब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इधर से मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारी उलमाए किराम, ये सारे बुजुर्गान दीन, मोहम्मद अली जौहर, ये सब के सब AKM फजलुल हक, ये सब ने पहले AKM फजलुल हक ने पाकिस्तान की तहरीक की मुखालिफत की, लेकिन फिर बाद में वो भी इसकी हिमायत करने लगा। फिर 1923 में वे बंगाल के वजीर आजम बने AKM फजलुल हक। फिर लोगों की दिलों के अंदर ये उभारने लगी हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुमलिकत बनना चाहिए, एक अलग मुसलमानों की रियासत होना चाहिए जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर बने। कि पाकिस्तान की मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस बात की बुनियाद पर ये मुल्क बनाने के लिए वो उलमाए किराम ने जो कुर्बानी दी है, वो उलमाए किराम ने जो कुर्बानी दी है, फिर उसके बाद इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल की अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, बल्कि उलमाए किराम और मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के किताब में लिखते हैं कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कई मरतबा ख्वाबों में देखे। पहले वो मुखालिफ थे, फिर बाद में कहने लगा कि नहीं, अल्लाह के रसूल को बार बार वो ख्वाब में देख रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुसलमानों की रियासत होना चाहिए। और ये बात करने के बाद हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी इस बारे में फिक्र करना शुरू कर दिया, इस बारे में गौर करना शुरू कर दी। फिर अल्लामा इकबाल ने भी, और ये एक तफक्कुरात और इस तदब्बुरात को मुसलमानों के लिए अलग रियासत की सोच को आगे बढ़ाते हुए 1930 बास के कौल के मुताबिक 1928 को इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस किया। और उसके अंदर जो है ना, ये आल मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग के नाम से कि मुस्लिम लीग की आल मुस्लिम लीग इंडिया से, फिर जो है आल मुस्लिम लीग इंडिया से जो है पाकिस्तान की आज़ादी की नाम, वहीं से पाकिस्तान की आज़ादी का शुरू होती है। फिर ये और मुस्लिम लीग आकर बन जाते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम आल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने के बाद फिर इन लोगों ने कहा हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग जमात, अलग रियासत होना चाहिए। उन्हीं दिनों में इंडिया भी जो है आजाद हुए। 27 रमजानुल मुबारक शाब कदर वाली रात, जो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। फिर उस रात को 12 बजे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने यह आज़ादी की खबर सुना देते हैं, ऐलान हो जाती हैं कि भाई जो है ना पाकिस्तान आज़ाद हो गई, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। फिर इधर से इंडिया भी आज़ाद हो गई। फिर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को चुने हैं और इंडिया ने 15 अगस्त को चुने हैं। अब इस तहरीक के अंदर अल्लामा इकबाल ने जब अपना फिक्रात शुरू की, कायदे आजम ने सबसे पहले कांग्रेस में थे, उसकी बाद ये अपने वकालत वगैरह करते थे, बड़े तालीमी याफ्ता था। और मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद, कायदे आजम देख रहा कि मुस्लिम लीग में कोई जान नहीं है और इंतहाई परेशान है और इंतहाई तरद्दुद में पड़ गए थे।
अब ये मुस्लिम लीग कामयाब होगी या नहीं होगी इस बारे में सोचने भी लगे, और फिर लोगों से परेशान होकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी तफक्कुरात थे उनकी, बड़ी बेहतरीन तकरीर किया करते थे, और बड़ी खानदान, बड़ी ऊंचे मालदार के बच्चे थे। सहवाल के रहने वाले, गुजरात में इनकी वालिदैन बसे हुए थे, गुजराती जबान इनकी वालिदैन बोला करते थे पूंजे वगैरह के नाम से। लेकिन वो कायदे आजम अपनी तकरीर, इनकी तकरीर से पूरे मुल्क को रोशन कर दी। मुसलमानों के लिए एक रियासत की, अलग एक रियासत बनाने की सोच समझ को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों के दिलों के अंदर इस बात को नाफिज कर दी। और उसकी बात जब मुसलमान, हर मुसलमानों की बोली, मुसलमानों की इस बोलियों से निकलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों, उस वक्त 6 लाख लोग शहीद हुए और 1.5 करोड़ से ऊपर लोग हिजरत करके आए। आप उनसे पूछें कि हर दरियाएं, उनके अंदर लाशें लाश थे, हर तालाबों में लाशें लाश थे, हर नहरों में लाशें लाश थे, हर जंगलों में लाशें लाश पड़े हुए थे। 6 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है। 6 लाख लोगों की कुर्बानी की बदले में ये पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान की मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहकर पाकिस्तान आगे बढ़ते रहे। और पाकिस्तान की आजादी की खबर रात को 12 बजे शब कदर की रात 1947 को सुना देते हैं। इससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने AKM फजलुल हक को लाकर खड़े कर दिया है कि आप करारदाद पेश कर दें। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान के नाम से मिंटो पार्क में ये करारदाद पास करते हैं। करारदाद पाकिस्तान 1940 को किसने की है, AKM फजलुल हक, जो कि 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी थे। फिर 1923 में वजीर आजम बंगाल के वजीर आजम बने। बहुत सारे उलमा इनकी तारीखें बोलने में शर्माते भी है, AKM फजलुल हक का नाम लेने से भी शर्माते हैं। बड़े बड़े उलमा अपना तारीखें बताते हैं और 14 अगस्त के बारे में बयान करते हैं, और ऐसे लगते हैं कि इन लोगों को शर्म लगती है उलमाओं के नाम, ये बड़े बड़े लीडरों के नाम लेने से। इतने बड़े मुफक्किर थे ये लोग, पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले थे। तो AKM फजलुल हक ने 1940 को यह करारदाद पास की, जिसको करारदाद पाकिस्तान नाम दिया गया। और 1930 को अल्लामा इकबाल, जो शायर मशरिक है, जिनकी क्या बात है, जिनकी शेर की इंसान अंदाजा नहीं कर सकते हैं। पूरे दुनिया इनकी शेर से, इनकी फिकरात से, इनकी शेर की से जो है ना अपने कानून बना रहे होते हैं, और कायदे आजम की तकरीरों से ये अपना इस्तिफादा हासिल कर रहे होते थे। कोई अंग्रेजी में, कोई अरबी में, कोई और किसी जबान में, कोई और किसी जबान में ना, इसकी तर्जुमा करके अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होती हैं और अपना आजादी का तहरीक चला रहे होती हैं। लेकिन आज हमारे अल्लामा इकबाल कौन है, हम तो इनको जानते भी नहीं। शायर मशरिक थे, क्या इनके अंदर दीनदारियत थी, क्या इनकी ख्वाब थे पाकिस्तान के लिए, क्या इनका सोच थे पाकिस्तान के लिए, क्या इनकी तफक्कुरात थे पाकिस्तान के लिए। कितनी बड़ी फिलसफार थे, कितनी बड़ी जो है दीन की मुबल्लिग थे, कितने बड़े मुफक्किर इस्लाम थे, जो सोचते हुए अपने 1930 को इलाहाबाद में ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस करके इसके ऐलान कर देते हैं। और फिर पाकिस्तान में मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू हो जाते हैं। और 1940 को AKM फजलुल हक करारदाद पेश कर देते हैं, करारदाद पास हो जाती है। और जिसकी हिमायत में मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मौलाना शिब्बिर अहमद उस्मानी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अशरफ अली थानवी और दीगर, बल्कि उस
प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद अली जौहर मौजूद थे, शिब्बीर अहमद उस्मानी मौजूद थे, जफर अहमद उस्मानी भी मौजूद थे, और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने हिमायत की है। और आज लोग कहते हैं कि उलमाए किराम पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मेरे भाइयों, खुदा को खौफ करो, ऐसे ना बोलो कि उलमाओं के कितनी किरदार थे। बर्रे सगीर से लेकर पाक हिंद के उलमा शहीद होते हुए, फिर आल मुस्लिम इंडिया, आल मुस्लिम लीग इंडिया, आल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से फिर उलमा शहीद होना शुरू हो गई। फिर उलमाओं की क्या कुर्बानी थे मेरे दोस्तों। फिर 6 लाख मुसलमान इस कलमा गो और अपने रियासत मुमलिकत को अलहदा बनाने के लिए, एक इस्लाम के नाम से इस मुल्क को होना बनाने के लिए अपने कुर्बानियां दी। 6 लाख लोगों ने कुर्बानी दी और 1.5 करोड़ लोग जो है ना हिजरत कर आई। तो आज बात यह है मेरे दोस्तों, हम 14 अगस्त में सेलिब्रेशन तक करते हैं, 14 अगस्त में हम खूब रंग रोगन करते हैं। 14 अगस्त में मेरे दोस्तों आप देखें, AKM फजलुल हक से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, और फिर उसकी बाद एक बाद दिगर जो है जितने भी लीडर पाकिस्तान के होते रहे, ये जो सारे बर्बादी हुआ, कोई लालच से, कोई करप्शन से, कोई अपने असबियत से, कोई लिसानियत से, कोई अपने तकब्बुरियत से, कोई अपना गुरगुरियत से, ये मुल्क तबाह बर्बाद होते गया। मेरे दोस्तों, आज अगर हम ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, इस मुल्क को आज 75 साल हो चुके हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कैसे कुर्बानी दी है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अपने लाशों को पानियों में बहा दी। हमारे बुजुर्गों ने हमारे अपने लाशों को पानियों में बहाकर, अपने समंदरों में बहाकर, अपने दरियाओं में बहाकर अपने इस्लाम के लिए अपने मुल्क को जो है ना कायम की है, अपना मुल्क की रियासत पाकिस्तान को जो है ना कायम की है, जिसकी मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इन लोगों ने इस मुल्क का बुनियाद, इस मुल्क को बनाया और इस मुल्क के लिए इतना कुर्बानी दी है। लेकिन आज हम अपना ऑफिसों में जाते हैं, हम अपने लोगों से फ्रॉड कर रहे होती हैं, हम बेमानियां कर रहे होती हैं, हम धोखे दे रहे होती हैं। ये मुल्क आज आजाद हुए तो 70-75 साल हुआ। तुम लोगों ने इस पाकिस्तान को दिया क्या है? तुम लोगों ने करप्शन दी है, तुम लोगों ने सूद दी है, तुम लोगों ने क्या किया? चोरी दी है, तुम लोगों ने क्या किया? डकैतियां किया, तुम लोगों ने क्या किया? मुल्क को लूटे हो, तुम लोगों ने क्या किया? अपने माल बनाया, तुम लोगों ने क्या किया? अपने दौलतें बनाया, तुम लोगों ने क्या किया? अपने जागीर बनाया, तुम लोगों ने अपने जमीनें बनाया। कोई जागीरदार बनी है, कोई वडीरे बने हैं, कोई सरदार बनी है। इस किस्म के अंदाज से कोई किसी को गरीब को गुर्बत में धकेल दी है और मालदार होते गए। कोई किसी के बारे में सोचने वाले नहीं है, अपने पड़ोस को सोचने वाले नहीं है। आज पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान को जिस अंदाज से हासिल किया गया, आज अगर एक मुसलमानों के, पाकिस्तानियों की ये सोच हो तो मेरे दोस्तों आज ये हमारे मुल्क की लगते जिगर 2 टुकड़ा कभी ना होते। ये एक असबियत की वजह से, ये एक लिसानियत की वजह से, ये गद्दारों की फतवा लगने की वजह से, गद्दारियत की फतवा लगने की वजह से, एक दूसरे को चोर कहने की वजह से, एक दूसरे को डाकू कहने की वजह से, एक दूसरे को करप्ट करने की वजह से, एक दूसरे के साथ असबियत वाली सुलूक, लिसानियत वाली सुलूक करने की वजह से, उनकी हुकूक ना देने की वजह से, इंसाफ ना होने की वजह से, इंसाफियत से ये मुल्क फारिग हो चुके, जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान तरक्की से करने की बजाय पाकिस्तान नीचे गिरते जा रहे हैं। आज अगर ये दोनों मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ होता और दोनों मिलकर अगर ये काम कर रहे होते, पूरे दुनिया के अंदर कितनी बड़ी नाम होते, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मुल्क की नाम किस अंदाज से रोशन होता और कितनी बड़ी मुसलमानों की ताकत और कुव्वत होता और मुसलमानों के ईमानी जज्बात होते। और अगर ये साथ में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक साथ होता तो फिर कितनी बड़ी ताकत होते। आज पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान राज कर रहे होते, मुसलमान बादशाह कर रहे होते थे। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर इंसाफ ना होने की वजह से, अपने भाइयों की हमदर्दियां ना होने की वजह से, अपने जो है ना भाईचारगी ना होने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर हमदर्दी खत्म होने की वजह से, जिसकी बुनियाद पर हम सिर्फ सेलिब्रेशन मनाते रहते हैं, बाकी पाकिस्तान की तरक्की को कभी नहीं सोचे हैं। आज अगर हम पाकिस्तान की तरक्की नहीं
सोचेंगे मेरे दोस्तों तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों याद रखो, जनाब भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने, जुल्फकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने किस अंदाज से एटमी प्लान लेकर आया। पूरे दुनिया के अंदर पाबंदी लगने के बावजूद भी पूरी दुनिया में पाबंदी थी स्मगलिंग करना, और अंग्रेज कुफरियत मुमलिकत ये चाहते थे कि किसी भी मुस्लिम ममालिक में ये एटमी प्लान ना जाए, किसी को सुपर पावर बनने ना दी जाए। और फिर जब ये पाकिस्तान बने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कलमा तैयबा की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त से पाकिस्तान की दुश्मन इस मुल्क के पीछे लगे हुए थे। इसकी साथ बगावत करने वाले, इसकी साथ अदावत करने वाले, इसकी साथ बुग़्ज़ रखने वाले ये दुश्मन अपने मिली आंखों से देखना शुरू कर दी है। आज अगर हमारे नौजवानों को होश हवास अगर हो तो ये अपने मुल्क की दुश्मनों को देख ले, अपने मुल्क की दुश्मनों को जो मिले आंखों से देखते हैं, इनको देखकर इनके सामने खड़े होकर इनको जवाब दे। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात, हमारे मुल्क की नौजवान भी इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमारे यहाँ तालीम की कोई फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ दीन की कोई फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ कलमे की कोई फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ भाईचारगी की कोई फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ अदावत है, हमारे यहाँ बुग़्ज़ है, हमारे यहाँ कीना है, हमारे यहाँ हसद है, हमारे यहाँ मालदार है, हमारे यहाँ वडीरे है, हमारे यहाँ सरदार है, हमारे यहाँ आगा है, और गरीब है, फकीर है, जिसकी वजह से ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज जो हमसे छोटे से मुल्क जो यहाँ से टुकड़े होकर कितनी आगे निकल पड़े हैं, मलेशिया से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज इतनी बड़े मुल्क होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के नाम से ये मुल्क पाकिस्तान बने हैं, इस्लामी रियासत के नाम से खास ये मुल्क अल्लाह ने बना दी है, तुम्हारे हाथों में दी है, तुम्हारे बुजुर्गों की शहादाओं की बरकत से तुम्हें ये पाकिस्तान मिली है। तो तुम अपने जब कोई तो जो है ना अपने सीट की लालच में, कोई अपना कुर्सी की लालच में, कोई अपने वजारत की लालच में, कोई अपने माल की लालच में, कोई अपने दौलत की लालच में इस मुल्क के साथ तुम गद्दारियां करते हो, इस मुल्क के साथ तुम फ्रॉड करते हो, इस मुल्क के साथ तुम धोखाबाजियां करते हो, और अगर कोई शरीफ है तुम उसको गद्दार की फतवा भी लगा देते हो। और फिर इसके अंदर तफर्रुका पैदा करना, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले एक कलमा गो है, सारे पाकिस्तानी है, मस्जिद में बैठकर मिंबर के अंदर एक छोटा सा मुल्ला किसी को काफिर की फतवा दे रहे होती है, और किसी को सुन्नत की फतवा दे रहा होती है, किसी को दियाबंदी, किसी को बिरलवी, किसी को आलिम प्रत्याशी, किसी को और कुछ क्या कर, किसी को काफिरों की फतवा देकर मेरे दोस्तों मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा कर दी है। जबकि चाहिए था पूरे पाकिस्तानी को वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ऊपर इत्तेफाक हो और इज्तिमाइयत हो मुसलमानों के अंदर, फिर इसी वजह से और यकीन भी हो अल्लाह के ऊपर। इत्तेहाद, ईमान और यकीन, इत्तेहाद, ईमान, यकीन, इन तीन चीजों के ऊपर जिस दिन पाकिस्तानी अमल करने लग जाएगा उस दिन यकीनन पाकिस्तान कामयाब होगा, और एटमी मुल्क इंशाअल्लाह ताला पूरे दुनिया में सुपर पावर की हैसियत से आगे बढ़कर आएगा। लिहाजा हम अपने नौजवानों को कहता हूं, मैं अपने नौजवानों को कहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बच्चों, उठकर खड़े हो, जो अपने मुल्क के लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने खून को पानी की जैसे बहा दी है, आप भी अपने खून को पानी की तरह बहने के लिए तैयारी कर लो। अभी से अपने पढ़कर, अपने तालीमें हासिल करके, उसकी बाद अपने जद्दोजहद करके, अपने ईमान की कुव्वत से, ईमान की जज्बात से, और ईमान और यकीन और इत्तेहाद की जज्बे से अपने मुल्क को कामयाब बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो, और सुपर पावर से आगे बढ़कर सुपर पावर बनने की कोशिश करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।